ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ اس علاقے میں آئے ہوئے ہمیں تھوڑا ہی وقت گزرا تھا۔ یہ علاقہ مجھے بہت پسند تھا کیونکہ یہ گنجان آباد تھا اور گھروں کی چھتیں بھی آپس میں ملی ہوئی تھی۔ میری خوش قسمتی یہ تھی کہ یہاں پر آنے کے بعد بھی میری 3-4 لڑکیوں کے ساتھ دوستی ہو گئی جو میرے ہی محلے کی تھی۔ ان کے ساتھ باتیں کر کے میرا اچھا وقت گزر جاتا تھا۔ چونکہ میری پڑھائی مکمل ہو گئی تھی لیکن گھر سے نوکری کی اجازت نہیں تھی۔ ہمارے خاندان میں یہی رواج تھا کہ وہ لڑکیوں کو ان کی مرضی کے مطابق تعلیم دلواتے تھے تاکہ ان میں شعور آ جائے، لیکن نوکری کرنے کی اجازت نہیں ملتی تھی۔ مجھے بھی اپنے خاندان کی یہی بات بہت زیادہ پسند تھی کیونکہ نوکری کرنے کے حق میں بھی زیادہ نہ تھی۔ میں بھی یہی سوچتی تھی کہ عورتوں کی عزت گھر میں ہی رہنے سے ہے۔ خیر، ہر کسی کا اپنا اپنا نظریہ ہوتا ہے۔ بہرحال میرا نظریہ یہی تھا۔ اس محلے میں آج مجھے 8واں دن تھا۔ میں معمول کے مطابق صحن میں بیٹھی ہوئی تھی اور اپنی دوست سے گپیں لگا رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر پہلے وہ یہاں پر آئی تھی۔ اچانک ہی وہ مجھے کہنے لگی، تمہارے لیے میں نے بہت ہی اچھا رشتہ دیکھا ہے۔ اس کی بات سن کر پہلے تو میں حیران ہوئی، پھر میں شرما گئی۔ اس کی بات میری ماں نے بھی سن لی تھی۔ وہ تیزی سے آئیں اور پوچھنے لگیں، ارے کومل، تم کون سے رشتے کی بات کر رہی ہو؟ کومل ان کی بات سن کر بوکھلا گئی، پھر کہنے لگی، آنٹی وہ بس میں آپ کو بتانے ہی والی تھی لیکن میں نے سوچا کہ پہلے اسے بتا دوں۔ اس کو گھبراتے دیکھ کر میری ماں نے اسے تسلی دی اور کہا کہ تمہیں ڈرنے کی یا خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ میں تمہیں کچھ بھی نہیں کہہ رہی اور نہ ہی تمہیں ڈانٹ رہی ہوں۔ تم بس اس رشتے کے بارے میں بتاؤ جو تم نے دیکھا ہے۔ ان کی بات سن کر تو وہ مطمئن ہو گئی اور کہنے لگی، آنٹی مجھے اسی وجہ سے آپ لوگ بہت زیادہ پسند ہیں کیونکہ آپ لوگ کھل کر بات کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بات کرنے کی مکمل آزادی دیتے ہیں۔ پھر کومل نے انہیں اپنے ایک کزن کے رشتے کے بارے میں بتایا۔ اس نے مزید کہا کہ میری کزن نے سارا کو خود پسند کیا ہے۔ دراصل پچھلے چند دنوں سے وہ ہمارے ہی گھر رہنے کے لیے آیا ہوا تھا۔ ایک دن جب سارا میرے گھر سالن دینے کے لیے آئی تو اس نے سارا کو دیکھ لیا اور پھر وہیں اسے پسند کر لیا۔ میری امی اس کی بات سن کر چند لمحے کے لیے خاموش ہو گئیں اور پھر کہنے لگیں، کیا انہوں نے خود تمہیں بات کرنے کے لیے بھیجا ہے؟ کومل نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا اور کہا، نہیں آنٹی، ابھی صرف اس بارے میں مجھے ہی پتا ہے۔ وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ میں کومل سے پتہ کروں اور اس کی پسند کے بارے میں پوچھوں۔ یہاں پر میری امی کی ہمت جواب دے گئی۔ انہوں نے انتہائی سختی سے کومل کو منع کیا اور کہا کہ تمہیں اس طرح کی حرکت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے کزن کو بھی اچھی طرح سے سمجھا دو کہ اگر اس نے واقعی شادی کرنی ہے تو وہ اپنے والدین کو لے کر میرے گھر آ جائے کیونکہ اپنی بیٹی کی زندگی کا فیصلہ میں ہی کروں گی۔ اس طرح سے یوں دل کے حالات کے بارے میں جان کر چسکے لینا مجھے بالکل بھی پسند نہیں۔ تھوڑی دیر پہلے ہی امی کے چہرے سے میں ان کے اندر ابلنے والے لاوے کا اندازہ لگا چکی تھی۔ میں کومل کو اشارہ کر کے خاموش ہونے کا کہہ رہی تھی لیکن وہ تیز تیز بول رہی تھی اور مسلسل فضول بول رہی تھی جس کی وجہ سے امی کو غصہ آ گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں چھت پر چلی گئی۔ چونکہ سردیوں کے دن تھے اور چھت پر میٹھی میٹھی دھوپ تھی، اس دھوپ میں چھت پر کینو کھانے کا مزہ ہی اپنا تھا۔ مجھے بیٹھے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اچانک ہی سبزی والے کی آواز سنائی دی۔ یہ سبزی والا مجھے بہت ہی عجیب لگتا تھا کیونکہ یہ جب بھی آتا تھا مسلسل چھت کی طرف دیکھتا رہتا تھا۔ میں نے 2-3 بار یہ بات نظر انداز بھی کر دی تھی۔ آج بھی میں جس انداز میں بیٹھی ہوئی تھی وہاں سے گلی کا منظر صاف نظر آ رہا تھا اور وہ گلی کے اسی کونے میں کھڑا تھا جہاں سے میں اسے دیکھ سکتی تھی اور وہ مجھے دیکھ سکتا تھا۔ چند لمحے کو تو میں نے یہ برداشت کیا اور سوچا کہ کوئی بات نہیں، تھوڑی دیر بعد یہ یہاں سے چلا جائے گا۔ لیکن جب وہ وہاں سے نہیں گیا تو میں تنگ آ گئی۔ میں وہاں سے اٹھ کر نیچے آ گئی لیکن گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور وہ گھر کے سامنے ہی موجود تھا۔ وہاں پر کھڑا ہو کر وہ مجھے عجیب و غریب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر مجھے خوف محسوس ہونے لگا۔ اس سے پہلے کہ میں اسے کچھ کہتی یا اسے ڈانٹ کر وہاں سے بھگاتی، اچانک ہی میری ماں وہاں پر آ گئی۔
लड़के को अपने घर के सामने खड़ा देखकर वो उसे डांटने लगी और कहने लगी, तुम्हें मैंने कितनी बार कहा है कि हमारे घर के सामने आकर मत खड़े हुआ करो। हमने नहीं लेनी सब्जी तुमसे और ना ही तुम्हारी शक्ल देखने का हमें कोई शौक है। मेहरबानी करो और जल्दी से यहाँ से चले जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं वहां पर खड़ी सारा मंजर देख रही थी। उस लड़के की इतनी ज्यादा बेइज्जती सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन उसकी हरकतें भी ठीक नहीं थी। वो बहुत ही अजीबोगरीब हरकतें करता था, जिससे सारे मोहल्ले वालों को ही गुस्सा आ जाता था। इस बार भी मेरी माँ की बात सुनकर वो मुस्कुराने लगा। उसकी मुस्कुराहट बहुत ही अजीब थी। चंद लम्हे के लिए तो मैं हैरान रह गई और सोचने लगी, ये किस किस्म का इंसान है जिसकी इतनी ज़्यादा बेइज्जती हो रही है, लेकिन ये बुरा मनाने के बजाय, कोई जवाब देने के बजाय मुस्कुराए चले जा रहा है। या तो इसमें इज्जत नफ्स ही नहीं है, या फिर ये वाकई कोई नफ्सियाती बंदा है। मेरी अम्मी भी उसे मुस्कुराते देखकर गुस्सा करने लगी। वो तेज़ी से आगे बढ़ी और उसे पीछे की तरफ धक्का देते हुए कहने लगी, तुम्हें मैंने यहाँ से जाने का कहा है, मुस्कुराने का नहीं। मगर वो अभी भी मुसलसल मुस्कुराए ही चले जा रहा था। थोड़ी ही देर बाद उसके चेहरे से अचानक मुस्कुराहट गायब हो गई। अब वहां पर संजीदगी ने अपनी जगह ले ली थी। मेरी अम्मी इससे पहले कि उसे दोबारा धक्का देती, उसने यकदम ही मेरी अम्मी का बाजू पकड़ा और इंतहाई गुस्से से कहने लगा, मुझे आज तक किसी ने भी हाथ लगाने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि जो भी मुझे हाथ लगाता है मैं उसे जलाकर भस्म कर देता हूँ। सिर्फ तुम ही हो जिसने ये गलती कर दी है। अब मुझे बताओ कि तुम अपने लिए कौन सी सज़ा पसंद करना चाहोगी? क्या तुम्हें जलकर मरना है या फिर तुम्हें उससे भी भयानक मौत चाहिए? उसकी इतनी हिम्मत देखकर चंद लम्हे के लिए तो मैं हैरान ही रह गई। मेरी अम्मी भी हैरान ही थी। उनका यकदम ही हाथ उठा, लेकिन उस इंसान ने अम्मी का हाथ पकड़ लिया और उनकी आंखों में देखते हुए कहने लगा, दोबारा कभी ये गलती मत करना। फिर साथ ही वो हंस दिया और बोला, अब तुम दोबारा ये गलती कर ही नहीं सकती, क्योंकि अब मैं तुम्हें ये गलती करने का मौका ही नहीं दूंगा। उसने यकदम ही अम्मी का हाथ छोड़ा और फिर मेरी तरफ देखता हुआ वहां से निकल गया। अम्मी तेजी से घर के अंदर दाखिल हुई। मुझे वहां पर खड़ा देखकर वो मेरे पास आई और मुझे झंझोड़ते हुए कहने लगी, तुम्हें पता है मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि वो कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि वो कोई और ही शय है। वो मुझे मज़ीद बताने लगी कि जब मैं मोहल्ले वाली औरतों से बातें करती थी कि जो लड़का सब्ज़ी बेचने के लिए आता है, मुझे वो लड़का बिल्कुल भी पसंद नहीं, तो वो औरतें मेरा मजाक बनाती थीं और मुझे कहती थी, अरे तुम उस शख्स को लड़का कैसे कह सकती हो, वो तो 60 साल का बूढ़ा आदमी है। तब मैं हैरान होती थी। मुझे यही लगता था कि वो मुझे जानबूझकर तंग कर रही हैं। लेकिन आज जब उस लड़के की आंखों में देखा तो मुझे सारी हकीकत पता चल गई, क्योंकि इंसान की आंखों का रंग कभी भी नहीं बदलता। या तो नाग अपनी आंखों का रंग बदलता है, या फिर शैतान या जादूगर। शैतान का लफ्ज़ सुनकर ही मेरे पूरे वजूद में खौफ की एक लहर दौड़ गई। मैंने अम्मी का हाथ पकड़ा और उन्हें कहने लगी, अब हम क्या करेंगे? अब हम कैसे उससे बचेंगे? अम्मी ने मुझे गले से लगाया और कहा, तुम फिक्र मत करो, जब तक तुम्हारी माँ जिंदा है तब तक तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उसके साथ ही अम्मी ने एक तावीज़ मेरे गले में डाल दिया और मुझे कहने लगी, जब तक ये तावीज़ तुम्हारे गले में मौजूद है तब तक तुम्हें किसी भी शैतान से डरने की ज़रूरत नहीं है। ये तावीज़ तुम्हारी मरहुमा दादी जान ने बनाया था। मैंने वो तावीज़ अपने गले में डाल लिया। रात का वक्त था, मुझे नींद नहीं आ रही थी। दिन का मंजर ही मेरी आंखों के सामने घूम रहा था। मैं करवटें बदल बदल कर थक चुकी थी। अचानक ही मुझे अपने गले में शदीद खारिश का एहसास होने लगा। ये खारिश इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि अब मुझसे बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया। मैंने शीशे के सामने जाकर देखा तो हैरान रह गई। मेरी गर्दन के इर्द गिर्द सुर्ख रंग का निशान बन गया था। ये सब कुछ वो तावीज़ पहनने से ही हुआ था। मुझसे एक गलती हो गई कि मैंने वो तावीज़ अपने गले से उतारा और साइड पर रख दिया। उसके बाद मैं वॉशरूम में चली गई, लेकिन जब मैं वापस आई तो तावीज़ वहाँ पर मौजूद नहीं था।
मैंने पूरे कमरे में तलाश करके देख लिया, मगर मुझे वो तावीज़ ना मिला। मैं हैरान रह गई कि कौन है जो यहाँ से तावीज़ उठा सकता है। अचानक ही मुझे शदीद नींद आने लगी। थोड़ी ही देर बाद मैं बिस्तर पर गिर गई। सुबह मेरी आंख काफ़ी देर से खुली थी। मैंने देखा कि मेरी अम्मी घर पर मौजूद नहीं थी। मैं सोचने लगी कि अम्मी इतनी सुबह सुबह कहाँ पर चली गई हैं। उन्हें कॉल करने के लिए बाहर आई कि दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाज़ा खोला तो सामने खड़े वजूद को देखकर मेरे कदमों के नीचे से ज़मीन निकल गई। सामने वही लड़का खड़ा था जिसने कल अम्मी के साथ बदतमीज़ी की थी। उसे देखकर चंद लम्हों के लिए तो मैं शशोपंच में ही मुब्तला हो गई कि आखिर उससे क्या बात करूं। मेरे मुंह से एक लफ्ज़ भी नहीं निकल रहा था। ना तो मैं उसे जलील कर पा रही थी और ना ही उससे ये पूछ पा रही थी कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। चंद लम्हे यूं ही खामोशी की नज़र हो गए। इस दौरान मुझे अपने चेहरे पर मुसलसल उसकी नज़रों की तपिश का एहसास हो रहा था। उसने मुझे कहा कि मेरी आंखों में देखो। बेसाख्ता मैंने गर्दन उठाई। ये सब कुछ इतना जल्दी हुआ था कि मैं सोच भी नहीं सकी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो मुझे अपनी तरफ खींच रही थी। थोड़ी देर तक मैं उसकी आंखों में देखती रही। उसके बाद मेरे वजूद को एक झटका लगा और मैं घुटनों के बल उसके सामने गिर गई। मुझे इस तरह से गिरता देखकर वो जल्दी से झुका और मुझे कंधों से पकड़कर उठाते हुए कहने लगा, यहाँ पर मेरा काम पूरा हो गया है। मैं तुम्हें हासिल करने में कामयाब हो गया हूँ और मैं इसके लिए रब का जितना भी शुक्र अदा करूँ कम है। जब मैंने दोबारा उसकी तरफ देखा तो वो मुझे दुनिया का सबसे हसीन लड़का लगा। मेरे दिल में अचानक ही उसके लिए मोहब्बत पैदा हो गई और वो मोहब्बत इतनी जानलेवा थी कि मैं बस किसी तरह से उसे हासिल करना चाहती थी। मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसे घर में अंदर आने के लिए कहा। वो भी मुस्कुराता हुआ घर के अंदर दाखिल हो गया। फिर मुझे देखते हुए कहने लगा, तुम्हारी माँ ने अच्छी कोशिश की थी तुम्हें मुझसे दूर करने की, लेकिन शायद वो ये भूल गई थी कि मैं एक बहुत ही पुराना खिलाड़ी हूँ। ये सारी चीज़ें मेरे लिए बहुत आसान हैं। मुझे उसकी बात समझ में नहीं आ रही थी। मुझे सिर्फ और सिर्फ ये पता था कि वो इस वक्त मेरे पास है और मेरे लिए इससे ज़्यादा बढ़कर खुशी की बात और कोई भी नहीं हो सकती। मैंने उसे अपने सामने बिठाया और उससे बातें करने लगी। उसका बोलना, उसका बैठना, उसका उठना, उसका चलना, हर चीज़ ही मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। काफ़ी देर तक मैं उसके साथ गप्पें लगाती रही। फिर दोबारा दरवाजे पर दस्तक हुई। मुझे पता था कि अम्मी वापस आ गई हैं, लेकिन मुझे उसको छोड़ने का दिल बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। मेरा यही दिल था कि वो मेरे पास ही बैठा रहे और मुझसे बातें ही करता रहे। इसी वजह से दस्तक की आवाज़ पर भी मैं ना उठी, बल्कि ढीठों की तरह बैठी रही। मैं उस वक्त ये बात भी भूल गई थी कि ना सिर्फ घरों की छतें मिली हुई हैं, बल्कि घरों की दीवारें भी एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। अगर उस वक्त कोई भी मेरे घर में झांक कर देख लेता तो मेरी सख्ती आ जाती। उस लड़के को देखकर लगता था जैसे उसे भी दूसरे लोगों की परवाह बिल्कुल भी ना हो। थोड़ी देर बाद उसने मेरे हाथों पर अपना हाथ रखा और मुझे तसल्ली देते हुए कहने लगा, तुम्हें लोगों से डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें किसी का भी खौफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं हर मोड़ पर तुम्हारी मदद करूँगा और हर मोड़ पर तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा। उसकी ये बात सुनकर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई। मैं उससे यही सुनना चाहती थी। मैं भी मुतमईन हो गई। दरवाजे पर जब 5वीं बार दस्तक हुई तो मैं मजबूरन उठ खड़ी हुई, लेकिन इस बार दरवाज़ा खोलते हुए मेरे वजूद में सिर्फ और सिर्फ बेजारी फैली हुई थी। मैंने एक नज़र सरमत की तरफ देखा और उससे पूछा कि अब तुम क्या करोगे, तुम कैसे यहाँ से जाओगे, क्योंकि अगर अम्मी ने तुम्हें देख लिया तो कहीं ऐसा ना हो वो दोबारा से गुस्सा कर जाएं। वो मुझे तसल्ली देने लगा और कहने लगा, तुम्हें मेरी परवाह करने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपना बंदोबस्त करके आया था, तुम बस जल्दी से जाकर दरवाज़ा खोल दो, लेकिन ध्यान रखना कि इस दौरान पीछे मुड़कर नहीं देखना। मैंने तेज़ी से हाँ में सर हिलाया और दरवाज़ा खोलने के लिए चली गई। थोड़ी देर बाद अम्मी घर के अंदर दाखिल हुई और मुझसे पूछने लगी
कि अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर कौन आया था। अम्मी की बात सुनकर मैं यकदम ही बौखला गई। मेरे चेहरे पर खौफ के तासुरात देखकर अम्मी हैरान रह गई। अरे तुम डर क्यों रही हो? मैंने तो बस सवाल पूछा है। मैंने अम्मी को कहा कि कोई भी नहीं आया था, मैं घर पर अकेली ही थी। तो बस इतनी सी बात मुझे जवाब दे दो, यूं खौफनाक शक्ल बनाने की क्या ज़रूरत है? ये कहकर अम्मी दोबारा से कमरे के अंदर चली गई। मैंने एक नज़र छत की तरफ देखा जहाँ पर वो लड़का मौजूद था और मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। उसे देखकर मैं भी मुस्कुराने लगी। थोड़ी ही देर बाद वो छत फलांग कर दूसरे घर चला गया। मैं नहीं जानती थी कि अब वो वहाँ से कैसे निकलेगा, मगर मुझे इतना यकीन ज़रूर था कि वो अपनी हिफाजत करना बहुत अच्छे तरीके से जानता है। मेरी ज़िंदगी बहुत खुशगवार गुजर रही थी। मेरी बचपन से ही ख्वाहिश थी कि मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान आए जो सिर्फ मुझसे मोहब्बत करता हो, जो सिर्फ मेरी ही परवाह करता हो। और अब मेरी ये ख्वाहिश पूरी हो गई थी। मेरी ज़िंदगी में सरमद आ गया था और उसके आने के बाद मेरी ज़िंदगी मुकम्मल हो गई थी। यूं लग रहा था जैसे और किसी चीज़ की ज़रूरत ही ना रही हो। लेकिन इस दौरान एक और मसला भी पैदा हो गया था, और वो मसला ये था कि मेरी माँ की तबीयत अचानक ही ख़राब हो गई थी। उन्हें पूरा दिन बुखार रहता था। रात के वक्त भी उनकी तबीयत ठीक नहीं होती थी, लेकिन कदरे बेहतर होती थी। मैं नहीं जानती थी कि अम्मी को एकदम से क्या हो गया है। एक दिन मैं अम्मी के पास ही बैठी उनकी दवाइयाँ देख रही थी। जब अम्मी को होश आया, उन्होंने मेरा बाजू पकड़ा और मुझसे पूछने लगी, अब तुम डरती तो नहीं हो? और वो लड़का, वो दोबारा तो यहाँ पर नहीं आया? अम्मी की बात सुनकर चंद लम्हों के लिए तो मैं खामोश हो गई। मेरा दिल बहुत तेज़ी से धड़कने लगा। मुझे यूं खामोश होता देखकर अम्मी ने मुझे झंझोड़ा और कहा, जल्दी से मुझे जवाब दो, इससे पहले कि मेरा दिल बंद हो जाए। मैंने अम्मी को झूठी तसल्ली दे दी और उन्हें कहा कि वो लड़का दोबारा मुड़कर यहाँ पर नहीं आया। अम्मी भी पुरसकून हो गई। फिर उन्होंने मुझसे पूछा, जो तावीज़ मैंने तुम्हें दिया था, वो तावीज़ तुमने अपने गले में तो पहना हुआ है ना? मैंने अम्मी को हाँ में जवाब दिया और फिर तेज़ी से बाहर निकल आई। मैं जानती थी कि अगर मैं ज़्यादा देर तक वहाँ पर बैठी रही तो अम्मी मुझसे मज़ीद उस लड़के के बारे में सवाल पूछेंगी, जबकि मैं अम्मी से झूठ नहीं बोल सकती थी। मैं अम्मी को अब क्या बताती कि वो लड़का इस हद तक मेरे जहन पर सवार हो गया है कि मुझे उसके अलावा अब कुछ नज़र ही नहीं आता। मुझे यूँ लगता है कि अगर मैंने उस लड़के को हासिल ना किया तो मैं मर जाऊंगी। मेरी ज़िंदगी का मकसद अधूरा रह जाएगा। मैं बाहर खड़ी इसी बारे में सोच रही थी जब मुझे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। पलट कर देखा तो वहाँ पर सरमद खड़ा मुस्कुरा रहा था। मुझे देखकर कहने लगा, अपनी माँ से हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। हमें हमेशा माँ को सच ही बताना चाहिए, क्योंकि एक माँ ही होती है जो मुश्किल वक्त में हमारी मदद कर सकती है। अब तुम उन्हें कुछ भी नहीं बता रही, कल को तुम पर मुश्किल वक्त आ गया तो तुम क्या करोगी? सरमद की बात सुनकर मैंने उसे गुस्से से घूरा और उसे कहा, तुम किस लिए हो? उसने मुस्कुराते हुए मेरा हाथ पकड़ा और कहने लगा, मैं तो हमेशा के लिए तुमसे मोहब्बत करने के लिए ही यहाँ पर भेजा गया हूँ। उसकी बात सुनकर मैं शर्मा गई। दोबारा मैंने उससे इस बारे में बात नहीं की। काफ़ी दिनों से मैं ये चीज़ नोट कर रही थी कि अब मेरी दोस्तें पहले की तरह मेरे घर पर नहीं आती। एक दिन मैंने अपनी सहेली के घर जाने का फ़ैसला किया। उसका घर पिछली ही गली में मौजूद था। हम दोनों की छतें भी मिलती थीं, लेकिन उन दिनों वो छत पर भी नहीं आ रही थी। मुझे परेशानी होने लगी थी कि कहीं ऐसा ना हो वो किसी मसले में फंस गई हो। बस इसी चीज़ का पता लगाने मैं उसके घर जा रही थी। जैसे ही मैं उसके घर दाखिल हुई, उसकी माँ मुझे देखकर उठ खड़ी हुई और कहने लगी, अब तुम किस मुंह से हमारे घर में आई हो? उनकी बात सुनकर मुझे हैरत का झटका लगा। मैंने बेयकीनी से उनकी तरफ देखा। थोड़ी ही देर बाद मेरी दोस्त भी बाहर आ गई और मुझे कहने लगी, सारा, मुझे तुमसे इस चीज़ की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। अगर तुमने शादी नहीं करनी थी
تو تم آسان الفاظ میں بھی یہ بات ہمیں سمجھا سکتی تھی. تمہیں اتنا بڑا تماشا کرنے کی ہرگز بھی ضرورت نہیں تھی. کومل کی آواز سن کر میں پریشان ہو گئی اور اس سے کہنے لگی, یہ تم کس طرح کی باتیں کر رہی ہو؟ تم کس کی شادی کی باتیں کر رہی ہو؟ مجھے تو کچھ بھی نہیں پتا. کومل, تمہیں میں پہلے دن سے ہی بتاتی تھی کہ یہ لڑکی مجھے ٹھیک نہیں لگتی. یہ مجھے ایک نمبر کی جھوٹی اور فراڈن لگتی ہے. لیکن تم نے میری بات پر یقین نہیں کیا اور اس سے اپنی دوستی کو بڑھائے رکھا. دیکھو تم اس کی وجہ سے کتنی زیادہ ذلیل ہو گئی ہو. اس کی ماں دوبارہ سے بول پڑی. میں نے انہیں کہا, آنٹی خدا کے لیے چپ کر جائیں. آپ اب مجھ پر الزام لگا رہی ہیں. آپ مجھ سے کسی ایسی بات کی وجہ سے ناراض ہو رہی ہیں جس بات کے بارے میں مجھے ذرا بھی علم نہیں. کومل چند لمحے تو میرے چہرے کی طرف دیکھتی رہی. پھر وہ میرا ہاتھ پکڑ کر اپنے کمرے میں لے گئی. اس کی ماں باہر سے آوازیں لگانے لگی, ارے اس کو کمرے میں کیوں لے کر جا رہی ہو؟ اس کو دھکے مار کر گھر سے باہر نکالو. اس کی وجہ سے ہم نے بہت ضلالت اٹھائی ہے. میری آنکھوں سے تیزی سے آنسو بہہ رہے تھے. میں نے ایک نظر کومل کے چہرے کی طرف دیکھا. وہ بھی ٹٹولتی ہوئی نظروں سے میری طرف ہی دیکھ رہی تھی. یوں لگ رہا تھا جیسے وہ پتہ لگانے کی کوشش کر رہی ہو کہ میں سچ کہہ رہی ہوں یا جھوٹ بول رہی ہوں. 2 دن پہلے ہی تمہاری ماں ہمارے گھر میں آئی تھی. کومل کی یہ بات سن کر مجھے لگا کہ 7 آسمان میرے سر کے اوپر آ کر گر گئے ہوں. میں نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا. اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کرتی, میں نے اس کے ہاتھ پکڑ لیے اور اسے کہا, تم یہ کیا کہہ رہی ہو؟ میری ماں پچھلے 1 مہینے سے بیمار ہے. اس میں اتنی ہمت نہیں کہ وہ چارپائی سے اٹھ کر واش روم جا سکے, اور تم یہ کہہ رہی ہو کہ وہ تمہارے گھر آئی تھی. پہلے میری پوری بات سن لو, پھر تم اپنی کہانی مجھے سنا لینا. کومل نے مجھے سختی سے خاموش کروا دیا. میں بھی خاموشی سے اس کی بات سننے لگی. تو کومل نے مجھے مزید بتایا کہ جب تمہاری ماں یہاں پر آئی تب میرے کزن کے والدین بھی یہاں پر موجود تھے. دراصل وہ تمہارا رشتہ لے جانے کی باتیں ہی کر رہے تھے جب اتفاقاً تمہاری ماں بھی یہاں پر چلی آئی. میں بھی خوش ہو گئی کہ چلو ابھی ہی ساری بات کلیئر ہو جائے گی. ویسے بھی آنٹی نے خود کہا تھا کہ اگر انہیں رشتہ مانگنا ہے تو وہ مجھ سے آ کر بات کریں. اسی وجہ سے میں مطمئن ہو گئی تھی. لیکن آتے ساتھ ہی انہوں نے میرے رشتہ داروں کو انتہائی نفرت سے مخاطب کیا اور انہیں کہنے لگیں, انسان کو پہلے اپنی اوقات دیکھنی چاہیے, پھر کوئی فیصلہ کرنا چاہیے. ہم سب تو حیران رہ گئے تھے کہ آنٹی کو ایک دم سے کیا ہو گیا ہے. میں اٹھی اور آنٹی کو خاموش کروانے ہی لگی تھی کہ انہوں نے مجھے وہیں پر روک دیا اور مجھے دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ اگر تم نے میرے پاس آنے کی یا مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش بھی کی تو میں تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کروں گی اور سارے محلے والوں کو تمہاری حقیقت کے بارے میں بتا دوں گی. آنٹی کی بات سن کر میں بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی تھی, کیونکہ مجھے یوں لگنے لگا تھا جیسے تم نے میرا راز اپنی ماں کو بتا دیا ہے اور تمہاری ماں اسی راز کی بات کر رہی ہے. اسی وجہ سے میں دور جا کر کھڑی ہو گئی اور خاموشی سے تماشا دیکھنے لگی. اس کے بعد آنٹی نے اس لڑکے کو مخاطب کیا اور پھر اس کا ماضی سب کے سامنے لا کر رکھ دیا. میں مانتی ہوں کہ میرا کزن اپنے کالج کے زمانے میں بہت رنگین مزاج تھا, لیکن اس نے اب یہ سب کچھ چھوڑ دیا ہے اور اس نے توبہ کر لی ہے. کم از کم آنٹی کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا. پھر انہوں نے میرے رشتہ داروں کو بھی ذلیل کیا اور انہیں کہا کہ خبردار جو میرے گھر میں رشتہ لانے کی بھی کوشش کی, ورنہ میں تم لوگوں کو اس سے بھی زیادہ ذلیل کروں گی. یہ کہہ کر وہ گھر سے باہر نکل گئی. تم نہیں جانتی کہ مجھے اور میری ماں کو کتنی زیادہ شرمندگی ہوئی. ہم نے ان لوگوں کو ہر طرح سے تسلی دی تھی اور انہیں یہ یقین دلایا تھا کہ آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ لوگ آپ کو انکار نہیں کریں گے. تم نہیں جانتی کہ میرے کزن کے والدین کتنے معزز لوگ ہیں. انہیں تو اس بات کا ڈر تھا کہ انکار کر دیا تو بے عزتی ہو جائے گی. انہیں کیا معلوم تھا کہ تمہاری ماں انہیں گھر پر آ کر یوں ذلیل کر دے گی. میں حیرت سے منہ کھولے اپنی دوست کی باتیں سن رہی تھی. میں نے اسے کہا کہ تم مجھ سے قسم لے لو
मेरी माँ की तबीयत वाकई ठीक नहीं है। मेरी माँ वाकई उठ नहीं सकती। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं आता तो मेरे घर पर चल कर देख लो। मैं उसे अपने साथ ले जाने लगी, लेकिन उसने एक झटके से अपना हाथ छुड़वाया और मुझे कहा कि मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है मैं दोबारा तुम्हारी माँ के हाथों जलील हो सकूं, और ना ही अब हमें तुम्हारी बात पर यकीन करना है, क्योंकि मैंने तुम्हारे दरवाजे के पीछे खड़े देख लिया था। तुम अपनी माँ के साथ ही आई थी। अब की बार मैंने अपना सर दोनों हाथों में गिरा दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उसे कैसे समझाऊं कि वो मैं नहीं थी, तो फिर वो कौन था? अचानक ही मेरे जहन में ये सवाल नमूदार हुआ। उसके साथ ही मेरा पूरा वजूद खौफ से कांपने लगा। मेरी दोस्त इंतहाई नफरत से मेरी तरफ देख रही थी। उसे मुझ पर एतबार नहीं रहा था, इसलिए मेरा वहां पर ठहरना बेकार था। मैं दोबारा से अपने घर वापस आ गई। आते साथ ही मैं अपनी माँ के कमरे में गई, जहां पर वो बीमार पड़ी हुई थी। अपनी अम्मी के करीब जाकर बैठी तो अम्मी हल्की हल्की आंखें खोलकर मुझे देखने लगी और कहने लगी, बेटा तुम इस वक्त कहाँ पर गई थी? मैंने उन्हें कहा कि आपकी बुराइयां सुनने के लिए अपनी दोस्त के घर गई थी। मैं उन्हें यह सब बताना नहीं चाहती थी, लेकिन फिलहाल मेरा दिल इस कदर बोझल हो गया था कि मुझे लग रहा था कि अगर मैंने किसी को भी अपने दिल का हाल ना बताया तो मेरा दिल दर्द से फट जाएगा। अम्मी ने हैरानगी से मेरी तरफ देखा। मैंने उन्हें कहा, 2 दिन पहले आप जो कुछ उनके घर में कह कर आई हैं, उन्होंने मुझे सब कुछ बता दिया है। मेरी बात सुनकर अम्मी परेशान हो गई। फिर मैंने ना चाहते हुए भी उन्हें सारी बात के बारे में बता दिया। अम्मी ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे कहने लगी, मुझे पता है तुमने वो तावीज़ खो दिया है, इसी वजह से हमारे साथ ये सब कुछ हो रहा है। अम्मी की बात सुनकर मैं यकदम ही शर्मिंदा हो गई। जब अम्मी ने दोबारा से उस लड़के के बारे में कहा कि वो मुझे ठीक नहीं लगता, यूं लगता है जैसे वो कोई बहुत बड़ा जादूगर हो, तो मैंने उन्हें जल्दी से उनकी बात काट दी और उन्हें कहा कि खुदा के लिए ऐसी बातें मत करें। उस लड़के को मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। वो मेरी सोच से भी ज़्यादा अच्छा लड़का है। वो आपकी बहुत ज़्यादा परवाह करता है। उसने तो ये भी कहा है कि वो बहुत जल्द आपका इलाज भी करवाएगा। अम्मी ने हैरत से मेरी तरफ देखा और मुझे कहने लगी, तो क्या बात यहाँ तक पहुँच गई है कि तुम उस लड़के से गप्पे लगाना शुरू हो गई हो? फिर अम्मी दोबारा से फूट फूट कर रोने लगी और मुझे समझाते हुए कहने लगी, खुदा के लिए अपने आप को उस लड़के से बचा लो। मेरा तो उसने ये हाल कर दिया है। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे साथ वो लड़का यह हाल करे। इस बार मैं खामोशी से अम्मी की बातें सुनती रही और अम्मी को कोई भी जवाब नहीं दिया, क्योंकि मैं जानती थी कि उन्होंने मेरी बात पर यकीन करना ही नहीं है। लेकिन अब हालात मेरे काबू से बाहर हो गए थे। वो लड़का कुछ ज़्यादा ही मेरे होशो हवास पर छा गया था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं उसकी इस कदर दीवानी हो जाऊंगी कि उससे चंद लम्हों की दूरी भी मुझे तकलीफ देने लगेगी। पिछले मुसलसल 4 दिनों से मैंने उसे नहीं देखा था और मैं उसके लिए मारी मारी फिर रही थी। यहाँ तक कि मैंने अपने पूरे इलाके का भी चक्कर लगा लिया था, लेकिन वो मुझे कहीं पर भी दिखाई नहीं दिया। न जाने वो कहाँ रहता था, कहाँ से आया था, मुझे कुछ भी पता नहीं था। मुझे सिर्फ और सिर्फ एक ही बात का पता था कि मैं उससे बहुत मोहब्बत करती हूँ और उसके बगैर मैं नहीं रह सकती। हैरत की बात तो ये थी कि हमें एक साथ इतना ज़्यादा अरसा बीत गया था। इतने सारे अरसे उसने मुझे अपने माजी के बारे में कुछ भी नहीं बताया। दूसरी तरफ अब मोहल्ले वाले भी मेरे बारे में अजीबो गरीब बातें करने लगे। वो ऐसी ऐसी बातें करते थे कि जिसके बारे में मुझे पता भी नहीं होता था। कल मोहल्ले की एक औरत ने मुझे रोककर मुझसे बदतमीजी की। उसने मुझ पर यह इल्ज़ाम लगाया था कि मैंने उसकी बेटी को मारा है, हालांकि मैंने उसकी बेटी को आज तक देखा भी नहीं था। जब मैंने अम्मी को ये जाकर सारी बात बताई तो अम्मी ने जवाबन मुझे यही कहा कि यह सब कुछ उसी लड़के की वजह से हो रहा है। अम्मी की बात सुनकर मैं गुस्सा कर गई। अगले दिन की बात है, शाम का वक्त था। मैं सहन में ही चहलकदमी कर रही थी और सरमत के बारे में सोच रही थी कि वो अचानक कहाँ चला गया है। कि दरवाजे पर दस्तक हुई।
दरवाज़ा खोला तो सामने एक खूबरू नौजवान खड़ा था। मुझे देखकर उसने अपनी निगाहें झुका ली, लेकिन फिर एक झटके से गर्दन उठाई। चंद लम्हों तक वो मेरे चेहरे की तरफ देखता रहा। फिर उसने मुझे कहा, मुझे तुम्हारी माँ से मिलना है। मैंने उसे पूछा कि तुम कौन हो? तो उसने कहा, मैं तुम लोगों का दूर का रिश्तेदार हूँ। तुम्हारी माँ मुझे पहचान जाएगी, लिहाजा मुझे अपनी माँ के कमरे में ले चलो। मैं उसे अपनी माँ के कमरे में ले गई। वो 2 घंटों तक मेरी माँ से न जाने कौन सी बातें करता रहा। जब वो वहाँ से गया तो मैं अंदर गई। अम्मी मुस्कुरा रही थी। मैंने उस लड़के के बारे में पूछा, लेकिन अम्मी ने मुझे कुछ भी नहीं कहा और कहा, बस ये समझो कि वो तुम पर एक बहुत बड़ा एहसान करके चला गया है। मुझे पहेलियों की शुरू से ही समझ नहीं आती थी। इस बार भी मेरे पल्ले कुछ भी न पड़ा। अगले दिन मैं छत पर खड़ी थी जब मुझे सरमद गली में दिखाई दिया। उसने उंगली से मुझे पास बुलाया। मैं उसके लिए इतनी ज़्यादा बावली हो गई थी कि मैंने आगे पीछे कुछ भी ना देखा और तेज़ी से भागती हुई बाहर चली गई। अब वो मुझसे थोड़े ही फासले पर खड़ा था और मुझे अपने पीछे आने का कह रहा था। मैं भी बगैर कुछ देखे समझे उसके पीछे चलती जा रही थी। मोहल्ले के लोग मुझे रुक रुक कर देख रहे थे, मगर मुझे किसी की भी परवाह नहीं थी। चलते चलते मैं कदरे वीरान इलाके में आ गई और फिर अपने शहर से थोड़े ही फासले पर मौजूद एक जंगल की तरफ चल दी। अब वो मेरे सामने खड़ा था। उसने मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ा और मुझ पर फूंक दिया। उसके साथ ही मेरे वजूद को झटका लगा। मैं घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ी। मेरे दिल में उसके लिए जो मोहब्बत थी वो यकदम ही ख़त्म हो गई। अब वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ खौफ मौजूद था। अपनी माँ की तमाम बातें जो मैं पहले भूल चुकी थी, वो बातें भी मुझे याद आ गई थीं। सरमद मुझे देखकर मुस्कुराने लगा और कहने लगा, मुझे लगता है कि तुम्हें सब कुछ याद आ गया है। उसकी बात सुनकर मैंने उससे कांपती हुई आवाज़ में पूछा कि तुम कौन हो? उसने पुरस्कार अंदाज में कहा, मैं एक शैतानी जिन हूँ जिसे अपने मकसद के लिए तुम जैसी लड़की चाहिए थी। मैं अपना मकसद बहुत जल्द तुम्हें इस्तेमाल करके पूरा कर लूँगा। उसने हाथ में एक हथियार उठा रखा था। वो उठाकर वो मेरी तरफ बढ़ा। इससे पहले कि वो मुझ पर वार करता, उसके जिस्म को आग लग गई। वो तड़पने लगा और चिल्लाने लगा। देखते ही देखते उसका खूबसूरत चेहरा बिगड़ने लगा। उसकी जगह एक बहुत ही खौफनाक चेहरे ने ले ली। अब वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ राख मौजूद थी। ये सब देखकर मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाया और मैं बेहोश होकर गिर पड़ी। दोबारा जब मुझे होश आया तो मैं अपने कमरे में मौजूद थी। करीब ही मेरी माँ बैठी हुई थी और वो लड़का बैठा हुआ था जो कल ही मेरे घर आया था। तब मुझ पर यह राज आश्कार हुआ कि उस शैतानी जिन ने मुझ पर जादू कर रखा था, जिसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ वो मुझे दिखाई देता था। उसके अलावा उसने मेरी माँ को भी एक ऐसी बीमारी में मुब्तला कर रखा था जो बहुत ही तकलीफ दे थी। उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ मुझे मारना था और अपने आका को खुश करना था। वो अपने इस मकसद में कामयाब हो भी जाता अगर कोमल का कज़न वहाँ पर ना आ जाता। कोमल का कज़न ना सिर्फ एक बैंक मैनेजर था, बल्कि उसके साथ साथ वो आमिल भी था। जब कोमल ने उसे मेरे बारे में बताया तो वो थोड़ा तशवीश ज़दा हो गया और फिर अपने डर को दूर करने के लिए वो मेरे घर आया। लेकिन यहाँ पर आकर उसे अंदाज़ा हो गया कि मामला कुछ और ही है। उसने मेरी माँ को तावीज़ दिया था और वो तावीज़ मेरे गले में डालने के लिए कहा था। रात के वक्त जब मैं सो रही थी तब मेरी माँ ने वो तावीज़ चुपके से मेरे गले में डाल दिया। खुशकिस्मती ये थी कि उस वक्त सरमद भी आगे पीछे मौजूद नहीं था। जब सरमद मुझ पर वार करने लगा तो उस तावीज़ की ताकत ने उसे रोक दिया। फिर बाद में अहमद ने आकर उसे जला दिया। दरअसल वो शैतानी जिन बचपन से ही मेरे साथ मौजूद था, मगर फिर बीच में कुछ वक्त ऐसा आया कि वो मुझे छोड़कर चला गया। अभी वो दोबारा से मुझे हासिल करने के लिए आ गया था। थोड़ी देर बाद अहमद मुस्कुराते हुए बोला, तो अब तो तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो ना? मैंने मुस्कुराते हुए सर झुका लिया।
अम्मी भी खुलकर मुस्कुराने लगी और यूं मेरी शादी अहमद से हो गई। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।